ओके हेलो आई एम सैम। हम लोग वही करने वाले जो हम पहले करे थे, बियॉन्ड गुड एंड इविल बाय फ्रेडरिक नीत्शे को हम पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। वी वेंट ओवर चैप्टर 1 विच इज़ प्रेजुडिसेस ऑफ फिलोसफर्स। हम उसी पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पार्ट 4 तक कर लिया था एंड उसमें हमने एडिशनल एक पार्ट 8 करा था जो कि थोड़ा बेसिक सा था, उसमें कुछ नहीं था। एंड अब हम करेंगे पार्ट 5 एंड पार्ट 6 पर प्रॉबेबली आई डोंट वांट टू लाइक टेक अप दिस वीडियो फॉर टू लॉन्ग। एंड लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दी थी जो कि भाई खुद से समझो यार, अब मैं क्या ही बताऊँ उतना तुम्हें, है ना। एंड लास्ट टाइम बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा फर्क हो गया था, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी था। एंड लास्ट टाइम ऑडियो भी थोड़ी सी फर्क थी, तो फिर ऑल थ्री ऑफ दोज इज गोइंग टू बी बेटर नाउ। एंड यप लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यप okay. Prejudices of philosophers, part 5. That which causes philosophers to be regarded half distrustfully and half mockingly is not only the oft repeated discovery how innocent they are, how often and easily they make mistakes and lose their way. In short, how childish and childlike they are, but that they are not enough honest dealing with them, whereas they all raise a loud, virtuous outcry when the problem of truthfulness is even hinted at the remotest manner. They all pose as though their real opinions had been discovered and attained through the self-evolving of a cold, pure, divinely indifferent dialect, in contrast to all sorts of mystics who fairer and foolisher talk of inspiration, whereas in fact a prejudice proposition idea or suggestion which is generally their heart's desire is abstracted and refined, is defended by them with arguments sought out after the event. They're all advocates who do not wish to be regarded as such, generally astute defenders also of their prejudices which they dub truths, and very far from having the conscience which bravely admits this to itself, very far from having the good taste of the courage which goes so far as to let this be understood, perhaps to warn a friend or a foe, or in a cheerful confidence and self-ridicule. The spectacle of tautology of old Kant, equally stiff and decent, which he entices us into the dialect by ways that lead more correctly misled to his categorical imperative, makes us fastidious once smile, we who find no small amusement in spying out the subtle tricks of old moralists and ethical preachers, or still more so the hocus pocus in mathematical forms. By this means of which Spinoza has, as it were, clad his philosophy in mail and mask, in fact, the love of his wisdom to translate the term fairly and squarely in order thereby to strike terror at once into the heart of the silent who should dare to cast a glance at the invincible maiden, that Pallas Athene. How much of a personal timidity and vulnerability does this I do not know how to pronounce this. Mas. Where the fuck did it? Okay. Masquerade. Masquerade. A way of behaving that hides the truth. Okay. Or somebody's true feelings. Okay. Cool. Masquerades of a sickly recluse betray. ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है कंपेयर टू द अदर वंस, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5-6 लाइन्स के साथ में स्टार्ट करते हैं पहले. दैट विच causes philosophers to be regarded half distrustfully and half mockingly is not of repeated discovery of how innocent they are, how often they are, and how easily they make mistakes and lose their way. In short, how childish and childlike they are, but that there are not enough honest dealings with them. ठीक है, तो ये कह रहा है कि bro, philosophers are half distrustful and half mockingly.
मतलब उनको मॉक करा जा सकता है. And how often they make mistakes. वो कितनी जल्दी, मतलब they make a lot of mistakes, they lose their way, even they are normal people. They are so childish and childlike. He also calls philosophers innocent. So he's taking a hit at philosophers. He also says that there are not enough honest dealings. He also says that there are not enough honest dealings with them. Not enough people are confronting their ass, bro. Like, you messed up here, you were childlike here, you were untruthful here, you were not correct here. Not enough people are honest about it or confronting them. Okay, moving on. Whereas they all raise a loud and virtuous outcry when the problem of truthfulness is even hinted at the remotest manner. Of course, you can understand this, that where did it go? That they all they all raise a loud and victorious outcry. जैसे कि कल वाला जो एपिसोड था, मतलब कल वाली जो वीडियो थी इसके बारे में, लास्ट वीडियो, उसमें when Nietzsche was talking about how the falseness of an opinion is not for us any objection to it, कि जो opinion की सच्चाई और झूठ होता है उसमें, for us it's not a fucking problem at all. Like, we do not give a fuck about it, allegedly. And I really disagreed, right? I was quite open about it. I was loud about it. So that's what he's saying. Most philosophers, they're loud and they raise a virtuous outcry when the problem या फिर एक truthfulness को थोड़ा सा भी hint करा जाता है ना किसी भी manner में, ये सटक जाते हैं भाई. They go crazy about it. Okay, moving on. They all pose as though their real opinions had been discovered and attained through the self-evolving of a cold, pure, divinely indifferent dialect. Whereas in fact, let's stop here. They all, जो philosophers होते हैं, जो उनके real opinions होते हैं, real opinions, वो they talk about it as if they got these opinions, they came up with these opinions through self-evolving of cold, divinely indifferent and pure dialects. एक सेकेंड, व्हाट डिड इट से? तो फिलोसफर्स कहते हैं कि उनको सेल्फ इवॉल्विंग डायलेक्ट से इनको ये ओपिनियंस उनके आए हैं, विच ही सेज इज व्हाट दे क्लेम. दे क्लेम दैट प्योरली डिवाइन, मतलब कनेक्टेड विद गॉड. उनके जो डायलेक्ट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद गॉड. दे आर कम्प्लीटली कोल्ड, मतलब फीलिंग्स नहीं होती उनमें, इमोशंस नहीं होती, वो प्योर हार्ड फैक्ट्स होते हैं उसमें. और क्या होता है, एकदम प्योर होते हैं वो. और इन ब्रैकेट ही सेज, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्टिक्स हु फेरर एंड फूलिशर टॉक ऑफ इंस्पिरेशन. अब वो कहता है कि कुछ तो इतने ज़्यादा फूलिश फिलोसफर्स होते हैं वो इंस्पिरेशन की बात करने लग जाते हैं अपने ट्रू ओपिनियंस में. ट्रू ओपिनियंस अगेन. देन ही सेज, whereas in fact a prejudiced proposition, idea or suggestion which is generally their heart's desire, abstracted and refined, is defended by them with arguments sought out after the event. Okay, so let's lock in on this one. All right, he says that पहले फिलोसफर्स कहते हैं कि जो उनके ये जो इनके ओपिनियंस आए ये डायलेक्ट्स की वजह से आए हैं. वट एवर डायलेक्ट्स दे हैड, उन्होंने सेल्फ एकदम कोल्ड, एकदम प्योर डायलेक्ट्स, एकदम उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है उनके डायलेक्ट्स में, उनकी वजह से उनके प्योर ओपिनियंस आए हैं. कुछ तो इतने फुलिश होते हैं कि वो कहते हैं कि वो उनको इंस्पिरेशन से आए. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. देन मूविंग ऑन, ही सेज दैट व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट जो ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, दे आर प्रेजुडिस्ड प्रोपोजिशन, आइडिया और सजेशन. प्रेजुडिस्ड मतलब बायस होता है, एकदम ही बायस्ड होता है अगेंस्ट और फॉर समथिंग. ठीक है, एकदम ही बायस्ड है. विच इज जनरली देयर हार्ट्स डिजायर, मतलब उनके दिल की इच्छा होती है जिसको अब्स्ट्रैक्टेड कर दिया जाता है, रिफाइन कर दिया जाता है. अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को आइडिया में बना देना. अब इट वॉज माई हार्ट्स डिजायर, ठीक है, मान लो मैं रेसिस्ट हूँ, मान लो, और मुझे इसको और मैं फिलोसोफर भी हूँ, तो फिर मैं अपनी दिल की इच्छा को एक आइडिया में कन्वर्ट कर दूंगा. रेसिज्म के आइडिया, मुझे काले लोग नहीं पसंद, मैंने उसको रेसिज्म में कन्वर्ट कर दिया. रेसिज्म अच्छा है बुरा है वो तो बात की बात आई है. आई रिफाइंड इट अ लिटिल कि ओके आई हेट ब्लैक पीपल, नो लेट मी जस्ट सेपरेट और थिंक डिफरेंटली ऑफ ब्लैक पीपल. आई डोंट हेट देम, वो तो दिल की इच्छा है मेरी, बट आई रिफाइंड इट एंड आई टर्न इट इनटू एन आइडिया विच टर्न आउट टू बी माई ट्रू ओपिनियन. If I was a philosopher, okay, no, bro, don't fucking clip this, by the way, bro, ठीक है. Which, as a philosopher, अगर philosopher है तो फिर Nietzsche says कि वो ऐसे, this is how it truly happens. And after this process, after they've turned it into an एक idea में convert करके थोड़ा सा refine करके फिर ये उसको defend करते हैं
आफ्टर दिस इवेंट हैज हैपेंड वो उसको जम के डिफेंड करते हैं. मूविंग ऑन, दे आर ऑल एडवोकेट्स हु डू नॉट विश टू बी रिगार्डेड एज सच. ऑल फिलोसफर्स एडवोकेट्स होते हैं. एडवोकेट्स मतलब किसी चीज़ को डिफेंड करना है, किसी चीज़ को फेयर दिखाना, किसी चीज़ को यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. तो फिर वो दे आर ऑल एडवोकेट्स बट दे हेट बीइंग रेफर्ड टू एज एडवोकेट्स. दे डोंट लाइक टू बी कॉल्ड एडवोकेट्स. ओके. Generally astute defenders also of the prejudices which they dub truths. तो फिर these advocates astute defenders होते हैं. astute मतलब very clever. astute होता है कि I convinced my parents in a very astute way. एकदम clever में I came up with new ideas. पहले मैं ये सोचता हूँ, फिर ये बोलूँगा, फिर ये बोलूँगा, पहले मैं ये बोलूँगा, अगर मैं ये proof दे दूँगा and I'll take this. तो फिर I came up with an astute way of convincing my parents. So मतलब एक clever way. तो फिर they are very clever defenders. Not only of the opinions जो कि initially are prejudices. Not only of those opinions जिनको उन्होंने refine करके थोड़ी idea में कर दिया. जो इनके pure prejudice है ना, जो इनकी pure bias है, जिनको वो truth मान लेते हैं, वो उसके भी defenders हैं. Dubbing truth मतलब कि coined term ऐसा होता है ना, coined term mitochondria. Right? People do that, right? I'm sure you would have heard, read it. So dubbing means calling it something, calling something that कि मेरा नाम है समन्यु बट मैं ऐसे मतलब मैं ऐसे कुछ और बुलाऊंगा. ठीक है. आई एम डबिंग हिम. ओके हेलो. तो मैं अभी एडिट करने बैठने वाला था एंड आई रियलाइज कि बीच में मेरी ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी. एंड यप, तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना बी डूइंग नाउ. एंड यप, ओके. सो हम बात कर रहे थे डबिंग ट्रुथ्स कि उसने डब कर लिया ट्रुथ को. जो उसके फॉल्स प्रेजुडिसेस है, जो उसके फॉल्स ओपिनियंस हैं, उसको उसने ट्रुथ मान लिया. उसको ट्रुथ जो वो कहते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत डिफेंड करते हैं. एंड लेट मी रीड फर्दर नाउ. एंड वेरी फार फ्रॉम हैविंग द कंसाइंस विच bravely admits this to itself. Let me reread. And very far from having the conscience which bravely admits this to itself, very far from having the good taste of the courage which goes so far as to let this be understood, perhaps to warn friend or foe, or in a cheerful confidence or self-ridicule. तो what this is saying is कि पहले हमने बात कर ली कि philosophers को भाई वो अपने जो उनके हार्टफुल डिज़ायर्स होते हैं, जो उनके प्रेजुडिसेस होते हैं, जो उनके बायस होते हैं, फर्स्ट ऑफ दे वो इनको अब्स्ट्रैक्ट करके एक ओपिनियन मतलब एक आइडिया बना लेते हैं. उसको फिर वो ओपिनियन बना लेते हैं एंड फिर वो उसको बहुत डिफेंड करते हैं. वो एक एस्ट्यूट वेज लाते हैं, क्लेवर वेज. ठीक है, रिमेंबर दिस वन. क्लेवर वेज लाते हैं बहुत ज़्यादा. एब्स्ट्रैक्ट का भी मतलब याद कर लो कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब टू टर्न समथिंग इनटू एन आइडिया. कि मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ब्रो, समथिंग इज बॉदरिंग मी, बट उसको एक एज टू ब्रिंग इट आउट एज एन आइडिया एंड डिस्प्ले इट. टू एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि बस एक आइडिया है, कुछ असली चीज़ नहीं है. ठीक है. अब मैं कहता हूँ कि फ्लाइंग कार्स, ठीक है, दैट्स आई मीन है शायद असली, मुझे क्या पता, बट ठीक है, कंसिडरिंग दैट्स नॉट रियल, दैट्स जस्ट एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है. ओके, मूविंग ऑन. तो फिर ये कहते हैं कि जो फिलोसफर्स हैं, फर्स्ट ऑफ भाई वो क्या करते हैं कि फेक चीज़ों को एक तो बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं. और उनकी जो कंसाइंस होती है, जो उनके सोचने का तरीका होता है, द वे दैट दे थिंक, इट्स नॉट, दे डोंट हैव अ कंसाइंस विच इज़ ब्रेव इनफ टू एडमिट इट टू इट सेल्फ. कि वो अपने आप को एडमिट नहीं कर पाते कि भाई ये मेरा ये प्रेजुडिस है, ये मेरा बायस है, दिस वाज जस्ट माई ओपिनियन, दिस वाज जस्ट माई प्रेजुडिस विच आई टर्न इनटू एन ओपिनियन एंड आई हैव कॉइंड इट और डब्ड इट एज ट्रुथ. डब मतलब किसी चीज़ को नेम करना. रिमेंबर दिस एज वेल. ठीक है. एंड मूविंग ऑन, देन ओवरऑल बस यही कह रहे हैं कि वो ना तो किसी को वॉर्न कर पाते हैं, अपने फ्रेंड या फिर फो को, इतना भी उनमें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती. और परहैप्स कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिडिक्यूल. रिडिक्यूल मतलब कि अपने आप को भाई ब्रो आई एम सो टॉल, आई मीन ठीक है ये रिडिक्यूल नहीं है. ओके, मैन आई एम सो बैड एट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैन आई एम वे टू डोप, ऐसा करके मतलब अपने आप को रेडिक्यूल करना, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करना मान लो. ठीक है. इन लाइक एकदम भी प्रॉपर डेप्रिशिएट नहीं करना, अपने आप को डेप्रिकेट नहीं करना, बट लाइक इन अ नॉर्मल कि चलो ठीक है भाई, मतलब मैं एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी थोड़ी सी कमी है, लाइक थोड़ी सी मॉडेस्टी प्लस ट्रुथ, उसको वो मान लो. ठीक है. रिडिक्यूल मान लो. तो फिर उनमें ना तो वो एक चेयरफुल कॉन्फिडेंस में बता पाते हैं किसी को, ना वो खुद को बता पाते हैं. तो फिर फिलोसफर्स दे देमसेल्व्स डोंट हैव अ कंसाइंस विच कैन टेल दिस ट्रुथ टू देमसेल्व्स. मूविंग ऑन,
The spectacle of tartuffery of old Kant, equally stiff and decent, with which he entices us into the dialect by ways that lead. ब्रैकेट में लिखा है more correctly mislead. So he's taking shots on old Kant. वो Kant एक पर्शियन फिलोसोफर था. तो ये उसके ऊपर शॉट्स ले रहा है. Let me continue. I'll explain later. To his categorical imperative makes us fastidious one smile. We who find no small amusement in spying out the subtle tricks of old moralists and ethical preachers. Okay. The spectacle of tartuffery of old Kant. Kant था भाई पर्शियन फिलोसोफर था. उसके आगे हमें नहीं जानना. एंड ही इज टेकिंग शॉट्स ऑन दिस गाय कि मतलब उसके ऊपर शॉट्स ले रहा है. मतलब कि तेरा कि अभी साले तुझे तो अभी बताऊंगा मैं. you're डन फॉर बड़ी. ही इज लाइक ही इज टीचिंग हिम अ लेसन. ठीक है. तो व्हाट ही सेज इज tartuffery. Tartuffery is hypocritical behavior, particularly in the domain of religiousness. ठीक है. अब मैं बोलता हूँ तुम्हें कि भाई साले तुझे हनुमान चालीसा नहीं आती. अब तू हर रोज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता. अब तू देख भाई. अब तो ब्रो तेरे से कोई गंदा आदमी नहीं देगा. मैंने आई एम गोना स्टॉप टंग टू यू. एंड मैं खुद उसे नहीं पढ़ता. आई कमिट द वर्स्ट सिंस एंड आई एम द वर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ. आई हर्ट सो मेनी पीपल. इफ दैट इज हाउ आई एक्ट. वो होती है tartuffery कि मैं लोगों को बता रहा हूँ. मैं लोगों को प्रीच करो भाई ये करो. इफ यू डोंट डू दैट यूर बैड. you're awful if you don't do that. But me myself even मान लो मैं करता हूँ. But the other acts which are so hypocritical, they are actual sins. तो that behavior is known as tartuffery. इसको hypocritical behavior in the domain of religion बोल लो. ठीक है. ओल्ड कैंट था फिलोसोफर था. तो कह रहा है कि ओल्ड कैंट भाई जो तू ये करता है ना अपना एक्टिंग करता है जो इतना रिलीजियस होने की, दैट इज फेक. यूर अ हिपोक्रेट. वो कहता है कि जो स्पेक्टिकल है जो इसका बिहेवियर है ओल्ड कैंट का, इक्वली स्टिफ एंड डिसेंट. तो अच्छा बिहेवियर है. मतलब काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी डिसेंट है. मतलब अच्छा ही एक्ट्स वेल इज वॉट इज ट्राइंग टू से. with which he entices us into the dialect by ways that lead to his categorical imperative. अब his stiff and decent acting or the hypocritical behavior is so good that he can lead us to his categorical imperative. Now what does he even mean by fucking categorical imperative? By the way इसने bracket में लिखा था more correctly mislead. तो फिर bro he's trying to fuck this guy up by the way. Makes us fastidious one smile. We who find no small amusement in spying out subtle tricks of old moralists and ethical preachers. So वो कह रहे कि fastidious मतलब not fond of. मतलब इमेजिन करो कि तुम वेबसाइट डेवलपर हो एक एंड तुम्हें क्लाइंट मिलता है. वो क्लाइंट है भाई बेकर है. ठीक है. बेकिंग करता है वो. तुम उसके पास जाते हो. ये देखो भाई बनाई है वेबसाइट. कहते हैं अरे यार ये लोगो इतना छोटा किया. लोगो तो बड़ा करो. तो लोगो करके लाते बड़ा. अरे यार टेक्स्ट तो ठीक कर दो थोड़ा. टेक्स्ट में क्या दिक्कत है. एंड ब्रो यू कम बैक एंड 10 हो गए 20 रिविजन हो गए एंड वो बंदा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. द पर्सन हु चेजेस परफेक्शन, द पर्सन हु जस्ट मतलब उसको किसी चीज़ में सही नहीं लगता कि अच्छा तू स्माइल कर रहा है. ठीक है भाई क्यों स्माइल कर रहा है. लाइक व्हाट्स द नीड टू स्माइल ब्रो. लाइक वो ऐसे होता है. मूविंग ऑन. तो हम क्या करते हैं वी बिकम फास्टिडियस टू समवन स्माइल कि व्हाट इज ट्राइंग टू से वी स्टार्ट हेटिंग समवन स्माइल. तो फिर जो ये क्या नाम है ओल्ड कैंट है. ओल्ड नहीं है वैसे उसका नाम कैंट समथिंग है. वो तो बुढ़ा हो गया होगा इसलिए बोलिए. तो ओल्ड कैंट इज स्प्रेडिंग हेट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय द वे. ठीक है. We who find no small amusement in spying out the subtle tricks of old moralists and ethical preachers. Okay, तो अभी कह रहे हैं कि हमें तो भाई अब why do we fall for this? We do not give a fuck about the small amusements. Sorry, the subtle tricks and old subtle tricks. अब इसकी trick है ना भाई. He's a fucking fakey. He pretends to be a very spiritual, a very religious guy, but he himself is a dumbass. He's trying to spread hate, right? तो फिर एंड वाई डोंट वी केयर बिकॉज हम वेयर वाज है ओल्ड मॉरलिस्ट और एथिकल प्रीचर्स के स्मॉल ट्रिक्स पे ध्यान देना ही नहीं चाहते. हमें उसमें अम्यूजमेंट ही नहीं है. उसमें एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट मतलब एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट नहीं है. ओके. और स्टिल मोर सो द होकस पोकस इन मैथमेटिकल फॉर्म by means of which Spinoza has as it were clad his philosophy in mail and mask
In fact, the love of his wisdom to translate the term fairly and squarely in order to thereby to strike terror at once into the heart of a silent who should dare to cast a glance at the invincible maiden, the Pallas Athene. How much of a personal timidity and vulnerability does the masquerade of a sticky recluse betray? Okay, so that went over my head. Or more so, the hocus pocus in mathematics. Okay, let's. Spinoza भी एक philosopher था. कहाँ का था? Let me tell you. Spinoza. Baruch Spinoza. Okay, Latin name was Spinoza. Where was he from? He was from Dutch Republic. Portuguese Jewish origin. Okay. Mathematician वगैरह भी था क्या? Leading philosopher था. Okay. So he's taking shots at big philosophers. Nietzsche. The fuck? Western philosophy. Okay. Cool. फिलोसोफर था. अब इसके आगे हमें नहीं जानना. बड़ा फिलोसोफर था, लीडिंग फिलोसोफर था डच पीरियड का, और इसके आगे हमें नहीं जानना. हम बस इतने देख रहे हैं. और स्टिल मोर सो द होकस पोकस इन where the fuck was I, bro? Or still more, so the hocus pocus in mathematical form by means of which Spinoza has, as it were, clad his philosophy in mail and mask. Okay, so what does he mean by clad? Dressed in or wearing a particular type of clothing. What the fuck is this guy trying to say? भाई हर पैराग्राफ में ना, मतलब मुझे मेन चीज़ समझ आ जाती है, बट ये 2-3 लाइन ऐसी बोल जाते हैं जो कितना भी ट्राई कर लो भाई कुछ समझ नहीं आता उसमें. विच आई मीन, मतलब मैं अगर अकेले में बैठ के भी रीड करता हूँ ना एकदम शांति में, इवन इफ माई प्रायोरिटी इज़ नॉट टू ट्राई टू एक्सप्लेन भाई, मगर मैं उसको बस रीड कर रहा हूँ ना, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि भाई तू क्या क्या कह रहा है भाई. ओके. और स्टिल मोर सो द होकस पोकस इन मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में होकस पोकस मतलब फालतू की बात, फोकस मतलब नौटंकी. ठीक है, स्पिनोजा की नौटंकी है जो कि ओके. तो वो अपनी फिलॉसफी को मेल एंड मास्क में, अच्छा मेल एंड मास्क, मेल एंड मास्क, ओके कूल. इसका गूगल पे मतलब नहीं आ रहा है, तो फिर वो आई कैन अंडरस्टैंड इज कि वो अपनी जो उसकी फिलॉसफी है वो उसको एक ऐसे तरीके में ड्रेस कर देता है जिससे कि वो उसको पुश करता है और उसको मास्क कर देता है. मास्क मतलब किसी चीज़ को, आई कैन मास्क माई सेल्फ टू लुक एज अ ग्रेट गाय, राइट. आई कैन मास्क माई सेल्फ टू लुक एज अ नॉफल गाय. तो हम अब यार होली पे पहनोगे ना भूत वाला मास्क, तुम भूत थोड़ी बन जाओगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई मीन क्या पता ऑलरेडी हो. माय बैड भूतीज. In fact, the love of, उसने लिखा है ब्रैकेट्स में, the love of his wisdom, HIS is in capital, the love of his wisdom to translate the term fairly and squarely in order thereby to strike terror at once into the heart of the assailant. The person who physically attacks somebody. ठीक है, एक फिजिकली अटैक करने वाले के दिमाग में वो टेरर डालना चाह रहा है, हार्ट में टेरर डालना चाह रहा है. इनविंसिबल मेडन, इनविंसिबल मतलब जो कभी मर नहीं सकता. इनविंसिबल, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर ये कोई फिलोसफी का टर्म हो सकता है. भाई ये मूवी की कैरेक्टर क्यों है? Okay, a female figure who is divine. I guess, bro. What the fuck is this guy saying? ये कहाँ से आ गए भाई? पैलेस एथेन कौन है? अच्छा, ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम.
हाँ थी नो, मेक सेंस. हाउ मच ऑफ द पर्सनैलिटी टिमिडिटी. अच्छा, मैस्कुरेड का क्या मतलब है? और वे ऑफ बिहेविंग. अच्छा ब्रो, ये तो अगर ये बुक में जेंजी टर्म्स में आ जाती है ना यार, मज़ा ही आ जाता है एक तो. ओके अच्छा. ओके लेट, अब आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी रफ ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट आई अंडरस्टैंड. अगर तुम्हें भी नहीं आ रहा है तो फिर वोम फोम ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा है. In fact, the love of his wisdom to translate the term fairly and squarely, in order to thereby force to strike terror at once into the heart of the assailant who would dare to cast a glance at the invincible maiden. That Pallas Athene. Excellent. How much of a personal timidity and does this masquerade of a sickly? Oh, bro, he's taking shots out here. Oh, he's taking shots out here, bro. तो ये कह रहा है कि ये लोगों को चूतिया बनाना चाह रहा है भाई. तुम समझ रहे हो? ये कह रहा है कि ये लोगों को चूतिया बनाना चाह रहा है. स्पिनोजा जो है वो लोगों को चूतिया रखना चाह रहा है. ही वॉन्ट्स टू मेक दम डमाइजेस. कि स्पिनोजा ही वो अपने फिलोसफी को ऐसे मास कर देता है, ऐसे मेल करता है. मेल मतलब कि स्प्रेड करता है, जिससे कि जो लव ऑफ हिज विजडम है, उसका लव ऑफ हिज विजडम, अगर वो अपने उसकी लव ऑफ हिज विजडम को ट्रांसलेट करना चाह रहा है इन हिज टर्म्स, नीचे के टर्म्स में. हिज कौन है यहाँ पे? हिज यहाँ पे स्पिनोजा है. स्पिनोजा का जो विजडम है, द लव ऑफ स्पिनोजा टुवर्ड्स हिज विजडम, अब जो नीचे को उससे समझ आ रहा है वो ट्रांसलेट करके हमें बता रहा है. इन ऑर्डर कि वो असाइलेंट मतलब किसी चीज़ को अटैक करने वाला, ठीक है. और ये कह रहा है कि thereby to strike terror at once into the heart of the assailant who would dare to cast a glance at the invincible maiden. ठीक है, invincible maiden किसको बोला है? पैलेस एथीन को बोला है. पैलेस एथीन कौन थी? गॉडेस ऑफ विजडम थी. ठीक है, ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम, एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम, स्ट्रैटेजी. हाँ ठीक है, दैट्स ऑल वी नीड टू नो. अब वो कहना चाह रहा है कि जो भी उसका लिसनर है, जो भी उसको फॉलो करता है, वो क्या चाह रहा है कि उसका जो लिसनर या फिर फॉलोअर है, जब भी वो विजडम या फिर द गॉडेस ऑफ विजडम को ऊपर देख भी ले, मतलब ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अटैक एट विजडम, हुएवर ट्राइज टू अटैक विजडम, अटैक बाय द सेंस ये नहीं कि उसको गलत कहना चाह रहा है, अटैक इन द सेंस जो ओके दिस कैन हैव टू मीनिंग्स. या तो अटैक इन द सेंस कि उसकी विजडम को गलत कहना चाह रहा है, उसके दिल के अंदर टेरर स्ट्राइक कर दो, एकदम डर आ जाए, हुएवर ट्राइज टू अटैक, उसको गलत प्रूफ करना चाह रहा है. या फिर अटैक वो वाला सेंस भी हो सकता है कि उसको सीखना चाह रहा है, लाइक अटैक एट इट, की ब्रो आई वांट टू लर्न दिस, आई वांट टू लर्न दिस. इट कैन हैव टू वेज. या तो वो लोगों को कहना चाह रहा है कि चूतिया, या फिर वो कहना चाह रहा है कि ओके ब्रो दिस इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दिस, लेट मी वो, या तो वो अपने डॉग मैटिस्ट, या तो वो एक सेकंड, भाई मैं बस पार्ट 5 करा रहा हूँ, मेरी आंट पड़ रही है. उसका जो विजडम है स्पिनोजा का, अब अगर कोई उसे अटैक करेगा तो फिर वो उसके दिल में टेरर बिठाना चाह रहा है. डन. एक हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई कि इसका मतलब ये हो सकता है. दूसरा क्या मतलब हो सकता है? अगर इसके विजडम को किसी ने इसके विजडम को सीखने का ट्राई करा, तो वो उनको चूतिया रहना देना चाह रहा है भाई, कि तुम चूतिया रहो भाई, प्लीज स्टे डम एज. तो वो भी नहीं करने देना चाह रहा. वो भी नहीं, या फिर इन दोनों में से एक चीज़ है. मतलब मैं समझ नहीं पा रहा वो कौन सी चीज़ है. ये थोड़ा ओपन एंडेड है. हाउ मच ऑफ पर्सनल टिमिडिटी मतलब शाइनेस या फिर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस एंड वल्नरेबिलिटी डज दिस मैस्कुरेड. मतलब कि अब मान लो मैं भाई गया किसी के साथ बाहर, ठीक है, एंड ओके ठीक है, मान लो कि बंदा है, ठीक है, वो अपनी एक्स के साथ बाहर गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी है. वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं बाहर होकर आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ 5-10 मिनट में, एंड वो बस अपनी एक्स के साथ आइसक्रीम खा के आया, ठीक है, जो कि ऑफकोर्स स्टिल नॉट गुड, बट वो बस अपनी एक्स के साथ आइसक्रीम खा के आया. या फिर वो ऐसी फीमेल फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा के आ गया जिसके
मतलब जो भी भाई, ठीक है, वो किसी फीमेल फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खा के आ गया और उसने अपनी बंदी को नहीं बताया, तो फिर उसने झूठ नहीं बोला, वो आइसक्रीम खाने ही जा रहे, बट उसने ट्रुथ को हाइड कर लिया, विच इज स्टिल रॉन्ग, ऑफकोर्स हिज गर्ल विल स्टिल फ्लिप आउट, बट उसने ट्रुथ को हाइड कर लिया, उस बंदे ने ट्रुथ को हाइड कर लिया, ही वेंट टू गो हैव आइसक्रीम विद अ फीमेल फ्रेंड एंड उसने अपनी बंदी को नहीं बताया, विच इज ऑफकोर्स बैड, इट इज बैड, बट उसने सच तो बोला है ना कि भाई मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ, आइसक्रीम खा के आया हूँ, किसके साथ खा के वो बात ही नहीं आई, तो फिर वो सच्ची है भाई तब तक, तो फिर ही स्टिल टेलिंग द ट्रुथ, बट ही इज मॉरली रॉन्ग. सिकली रेक्ल्यूज बेट्रे, रेक्ल्यूज मतलब होता है एकदम जो आइसोलेटेड सा बंदा होता है भाई, वो होते नहीं जिनको खुद में बात करते रहते हैं, एकदम उनको सोशलाइज करना नहीं आता, मतलब वो होता है कि सिलेक्टिव सोशलिज्म होता है कि कब सोशलाइज करना है, बट जिसको कुछ आता ही नहीं है ना, मतलब जो अपने आप में ही वियर्ड है थोड़ा सा, उनको वो कहते हैं रेक्ल्यूज कहते हैं. तो फिर वो स्पिनोजा को कह रहा है कितना वो टिमिड है, कितना वल्नरेबल है, और बातों को इतना छुपाता है, ही हाइड्स द ट्रुथ, और वो एक एकदम सिक रेक्लूज है जो एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता हो. सो दिस इज इट फॉर दिस. अब मैं इससे बताता हूँ what I've taken. I can give you 3 sentences. That philosophers are often wrong, they're often childish, and they make opinions turn into truths because of how well they defend them. But what they do not realize, and what the way they think don't help them to realize, is that their opinions are actually prejudices and harsh desires which have been abstracted and turned into opinions. Okay, cool. Then I can give you another sentence. Old Kant was a hypocrite in the domain of religion. Okay, so old Kant was a hypocrite in the domain of religion, and he was so persuasive that people believed him, and by believing him people became fastidious of one smile. They didn't like to see each other happy. Third sentence will be Spinoza used to mask his philosophy in such a manner that it was hocus pocus, and whoever tried to attack his philosophy or wisdom, he wanted that terror should strike their heart at once. And then he criticized Spinoza. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आया ब्रो, रीवॉच द वीडियो, नहीं तो मतलब किसी वीडियो में तो मैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल ही रखा होगा, जिस कॉन्टैक्ट मी देयर ब्रो, क्योंकि मुझे भी उतना समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आ जाओ भाई, वो इससे रिलेटेड भी नहीं है, बट आ जाओ यार, उस पर कम मेम्बर्स है अभी. ओके, 6 में नहीं कराने वाला कॉज ब्रदर, हाँ पता नहीं यार, और मुझे तब भी उतना नहीं समझ आया था जब मैंने फर्स्ट वाली रिकॉर्डिंग करी थी, बट इट्स ऑल गुड नाउ. ओके, बाय बाय.